A very good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Yes, ma'am. So friends, in the first session, I would like to talk on a very sensitive topic, that is ethical issues in research publications. Right? Here, I'm going to cover some best practices in ethical issues. Then, second one is copyrighted works, how to use for research, and third one is plagiarism. Okay, and research misconduct. So all these points which are related to ethics of research, I am going to discuss in this session. So friends, let's start. What do you mean by research publication? Publication is the final stage of research, and therefore it is the responsibility of the researchers. And the researchers have a responsibility to ensure that their publications are honest, clear, accurate, complete, and balanced. Okay. See, every word has got its own meaning. It should be honest, clear, accurate, complete, and balanced, and should avoid misleading, selective, or ambiguous reporting. Okay. So, the journal editors, the reviewers, and the researchers, it's a joint responsibility of these three people to make the research publication authentic. Right? Now, see, as far as for authors, what issues are there, ethical issues? See, he should ensure that it is his original work, it is unpublished, and he has given all the references he has used. Okay, that is attributions. Author should avoid redundant submission, duplicate submission. Okay, and there should not be any conflict of interest. As far as reviewers are concerned, they should maintain the confidentiality. They should check the competency. They should also check that all the cited works are attributed. Okay, and they should review the papers on the basis of knowledgeable content of the article, irrespective of sex, race, ethnicity, religion, or political values of authors. And as far as journal editors are concerned, there should be fairness in manuscript evaluation. They should maintain the confidentiality. Then, conflict of interest pertaining to manuscripts must be disclosed, and there should be active involvement in performing editorial duties. So these three people, that is authors, reviewers, and editors, they are responsible for the authentic publication. Now, what research ethics says? There should be honesty and integrity, then protection of human subjects, केयर और ऑफ एनिमल सब्जेक्ट. देखिए, कभी कभी कोई कोई एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में एनिमल एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो आपको एनिमल्स की केयर लेना भी जरूरी होता है. इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल publication, confidentiality should be there, and the publication should respect copyright and IPRs, and objectivity should be there. Okay. Now, आप जब पेपर पब्लिश करने के लिए देते हो जर्नल को, तो वो कौन से स्टेजेस से गुजरता है. देखिए, ऑथर सबमिट द आर्टिकल टू एडिटोरियल ऑफिस. राइट? एडिटोरियल ऑफिस क्या करता है? उसकी क्वालिटी और प्लेजरिज्म चेक करता है. वो अगर ओरिजिनल पाया गया
तो पेपर एक्सेप्ट किया जाता है पीयर रिव्यू के लिए। ठीक है, अभी देखिए पीयर रिव्यू जो होता है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता है कि आपका आर्टिकल जो विषय पर है, माइक्रो टॉपिक, ठीक है, तो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनके डेटाबेस में होते हैं, जर्नल एडिटर के, और उनको दो एटलीस्ट पीयर रिव्यूअर्स को आपका पेपर जाता है। ये पीयर रिव्यू होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यू एंड डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ब्लाइंड पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट रिव्यूअर के पास में जाता है, आपका नाम गाम, आपका डेजिग्नेशन, ये कुछ भी उनके पास में नहीं भेजते, सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट भेजा जाता है। ओके, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि वो दो जो पीयर रिव्यूअर्स है तो उनको भी पता नहीं रहता कि उनके पास में आपका आर्टिकल आया है, उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं होता। सो यू गेट द अनबायस्ड कमेंट्स ऑन योर पेपर। ठीक है, देखिए ये एडिटोरियल बोर्ड ने क्या किया, पीयर रिव्यू के लिए भेज दिया। हाँ, वो रिव्यू होके आ गया दो क्वालिफाइड एक्सपर्ट से। अभी एडिटर इन चीफ जो होता है वो डिसीजन लेता है वेदर द पेपर शुड बी एक्सेप्टेड, ओके, या पीयर रिव्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स दिए हैं तो मॉडिफिकेशन के लिए भेजना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, वैसे ऑथर को नोटिफाई किया जाता है। अगर कुछ मॉडिफिकेशंस है तो ऑथर विल रिवाइज द आर्टिकल एंड वो रिवाइज्ड आर्टिकल एडिटोरियल के पास में भेज देगा, और उसके बाद में अप्रूव होने के बाद आपका पेपर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर क्वालिटी ठीक नहीं रही या फिर प्लेजरिज्म पाया गया तो वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और पेपर पब्लिश होता है इस प्रकार से। अभी देखिए पब्लिकेशन एथिक्स जो है तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड कुछ लोगों ने डायरेक्शंस बनाए हैं। देखिए एक जर्नल होता है तो वो जर्नल का ऑथर इंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें भी उसने उन्होंने एथिकल एस्पेक्ट्स लिए रहते हैं। देन ब्लैकवेल बेस्ड प्रैक्टिस गाइडलाइंस है। फिर कोप है, कोप का फुल फॉर्म है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, और हमारे यूजीसी ने इसको एक्सेप्ट किया है कोप को, राइट। तो ये कोप मैं आपको कुछ बाकी के प्रेजेंटेशन में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि दीज गाइडलाइंस आर एक्सेप्टेबल टू यूजीसी एंड दैट इज वाई हमको भी उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, उनके भी कुछ गाइडलाइंस है। Then good publication practice for pharmaceutical companies, European Medical Writers Association guidelines, Council of Science Editors, then WEM, that is World Association of Medical Editors, and is European Association of Science Editors. तो ये कुछ मेजर गाइडलाइंस है रिगार्डिंग पब्लिकेशन एथिक्स। देखिए ये जो है ये पहली गाइडलाइन है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, तो उसका ये होम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस आर ऑल द गाइडलाइंस गिवन। यहाँ पे मैंने प्लेजरिज्म के लिए चेक किया तो ये 15 डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। उसके बाद में आप देखेंगे ये उसमें का एक है प्लेजरिज्म से रिलेटेड, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न एंड रिट्रैक्शन, राइट। उसके बाद में गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस करके एक गाइडलाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज यूरोपियन मेडिकल राइटर्स एसोसिएशन गाइडलाइंस। देन इसमें देखिए ये एक वाइट पेपर है 5 पेजेस का, जिसमें वो बता रहा है गाइडलाइंस। देन काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स है, दिस इज द पेज। ओके, इसमें देखिए ये पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा उन्होंने दिया हुआ है। ओके, दिस इज वेम पेज। ये वेम पेज में भी आप देख सकते हो वेम गाइडलाइंस, यहाँ पे एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, ऑथर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे अलग अलग गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं। ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिटिक्स, पीयर रिव्यू, देन अगर अदर पब्लिकेशन रिलेटेड इश्यूज लाइक इम्पैक्ट फैक्टर एंड ऑल। ये ईज गाइडलाइंस है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स, आप यहाँ पे
देख रहे हो, राइट। देखिए, रिसर्च एथिक्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है। एक है इंटीग्रिटी, दैट इज विश्वसनीयता, रिस्पेक्ट, देन गुड कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेयरनेस। अभी नॉर्वेजियन मेडिकल कमिटी जो है, नॉर्वेजियन कमिटी, उन्होंने क्या दिया है कि एथिक्स, रिसर्च एथिक्स जो है उसमें क्या होना चाहिए? क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, एकेडमिक फ्रीडम, क्वालिटी, voluntarily informed consent, confidentiality, impartiality, integrity, good reference practices, collegiality, institutional responsibility, availability of results, social and global responsibility, and of course laws and regulations. तो ये उन्होंने बताया है। अभी ये मैं बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है पब्लिकेशन एथिक्स की, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगी, लेकिन आपको बताती हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है। एक तो है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है ऑथरशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, then you can see collecting authorship information, attributing authorship to a group, then redundant publication। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटिंग रिसर्च इंटीग्रिटी, रजिस्टरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल्स लेनी है तो आप यहाँ ये जो हमने ये वेबसाइट्स दिए हैं वहाँ पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। Then protecting the rights of research participants, then respecting the confidentiality, respecting cultures and heritage, then informing readers about research and publication misconduct, okay, then publishing the work from a journal's own staff, then timing of publication, this is very very important thing, and conflict of interest, supplements and other funded publications, protecting IPRs. These are all the best practices followed in the domain of publication ethics. Now, I am coming to two words, that is plagiarism and copyright. Okay. The biggest misconception about plagiarism is that it is synonymous with copyright infringement. Okay. अभी देखिए, प्लेजारिज्म और कॉपीराइट ये दो चीजें जो है वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लेजारिज्म डील्स विद moral issues and copyright infringement is the legal part. ओके, हमारे यहाँ कॉपीराइट का कानून है और उसके तहत ये जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉपीराइट वायलेशन, राइट। व्हाट इज प्लेजारिज्म? वे व्हेन यू डोंट से वेयर यू टुक इट फ्रॉम, मतलब आपने किसी और के काम से मैटर उठाया है लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको एट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप चोरी कर रहे हो, राइट, दैट इज प्लेजरिज्म। और किसी दूसरे का काम जो है खुद का आप प्रिटेंड करते हो। दूसरा होता है व्हाट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज, व्हेन यू टेक इट विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। मतलब एक वर्क है वो कॉपीराइटेड है और वहां पे क्लियरली आपको इंडिकेट किया गया है कि आप इस जब भी यूज करेंगे हमारे परमिशन से यूज करेंगे, राइट। तो आपको आपने वो नहीं किया तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऐसी कुछ केसेस है व्हेन यू टेक इट विदाउट परमिशन एंड पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क, राइट। तो इसमें प्लेजारिज्म भी है और कॉपीराइट वायलेशन भी है। सो दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट वर्ड्स, दीज आर नॉट सिनोनिम, उसमें अंतर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉपीराइटेड वर्क्स के बारे में बताऊंगी कि एथिकली आप इनको कैसे यूज कर सकते हो आपके रिसर्च में। देखिए, कॉपीराइट सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कॉपीराइट स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो ये सिंबल दिया जाता है, उसके बाद में आपको कौन से साल में वो पब्लिश हुआ है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया जाता है, और तीसरा कॉपीराइट होल्डर का मे बी इंडिविजुअल और कंपनी का नाम होता है। ये 3 चीजों से बनता है कॉपीराइट स्टेटमेंट। ओके, अभी कॉपीराइटेड वर्क्स
हमारे रिसर्च पर्पस के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे कानून में, कॉपीराइट एक्ट में एक क्लॉज है फेयर यूज। तो फेयर यूज के क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए यू कैन यूज द कॉपीराइटेड वर्क्स। और जो काम पब्लिक डोमेन में आते हैं, मतलब जिसके ऊपर का कॉपीराइट खत्म हो जाता है, वो भी आप आराम से यूज कर सकते हो। अभी कॉपीराइट वायलेशन जो है ना, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहते हैं। ओके, उसके आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है, वो एक्ट 1914 में पहली बार आया और उसके बाद 1957 में। और 1957 का एक्ट जो है, तो वो आज भी चल रहा है विथ अमेंडमेंट्स। अभी देखिए, कॉपीराइट का मतलब क्या है। कॉपीराइट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ प्रोटेक्टिंग ओरिजिनल वर्क्स। मतलब आपके ओरिजिनल वर्क को वो प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। दूसरी चीज है, आप कुछ भी कॉपीराइट कर सकते हो, जैसे लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, पोएट्री, नॉवेल्स, मूवीज, सॉन्ग्स, आर्किटेक्चरल वर्क्स, ये सब आप कॉपीराइट के अंदर में ले सकते हो। ड्राइंग्स, पिक्चर्स, एवरीथिंग। देन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज, systems and methods of operation. See, it does not protect facts, ideas, systems, methods of operation. Right? और एक चीज आपको बताती हूँ कि कॉपीराइट आपको करना है आपके कलाकृति का, आपके क्रिएशन का, तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक होती है। इट मस्ट बी योर ओरिजिनल वर्क। दूसरा होता है, उसको मूर्त स्वरूप आना चाहिए। देखिए, जैसे मैं सोच रही हूँ कि अमावस की रात है, घनी बारिश हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, उसके बाद में आप सोचते हो कि ऐसी रात में एक मर्डर हो गया। ठीक है, अभी ये मैं कॉपीराइट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे दिमाग में आइडिया है, इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। लेकिन इस आइडिया को लेते हुए अगर मैं ड्राइंग बनाती हूँ, अगर मैं वैसे सिचुएशन में फोटोग्राफ निकालती हूँ, तो वो, या फिर मैं मर्डर मिस्ट्री करके एक नॉवेल लिख देती हूँ, तो वो नॉवेल कैन बी कॉपीराइटेड, वो पिक्चर कैन बी कॉपीराइटेड, ड्राइंग कैन बी कॉपीराइटेड। सो इट मस्ट बी फिक्स्ड इन अ टेंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। अभी कॉपीराइटेड वर्क है तो कौन से अधिकार होते हैं। जैसे आपके काम कॉपीराइटेड है, तो कोई उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो आपकी परमिशन के बिना नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, अडेप्टेशन लाइक कोई मॉडिफिकेशन उसमें ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी आपकी परमिशन लेना पड़ेगा उसको। और अगर आप परमिशन देने के लिए कुछ रॉयल्टी मांगते हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स मांगते हो, तो उसको देना पड़ेगा, तभी उसको वो राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे copyright.gov.in, ये हमारा ऑफिशियल होम पेज है हमारे कॉपीराइट ऑफिस का। ठीक है, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट दिया हुआ है, रूल्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर दिया हुआ है, कॉपीराइट पायरेसी के केसेस यहाँ पे दी है इंडिया के। तो ये सब, आपको कुछ भी जरूरत पड़े कि अगर आपको कॉपीराइट करवाना है आपके वर्क का, तो भी आप यहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो और प्रोसीजर्स देख सकते हो। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फ्लो है कि कॉपीराइट कैसे होता है, कौन से इसमें से उसको गुजरना पड़ता है, राइट। उसके बाद में हर एक प्रकार का जो क्रिएटिव होता है अलग अलग होता है ना, क्रिएटिविटी। जैसे ड्रामा है, म्यूजिक है, उसके बाद में कुछ बुक है, तो ये सब के लिए फिल्म है, तो सबके लिए अलग अलग फीस होती है। अभी
हमारा प्रश्न, हाउ कैन वी यूज कॉपीराइटेड वर्क्स? ओके, कॉपीराइटेड वर्क्स हम टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च के लिए फेयर यूज के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। Copyrighted works can be used according to terms arranged with the creator or owner. उसमें क्या क्या आता है? परमिशंस, दूसरा फीस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंसेस। तो ये 3 बेसिस पे हम लोग जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं और फेयर यूज के अंतर्गत आप उसको यूज कर सकते हो। अभी फेयर यूज का मतलब क्या है? मेरी आवाज कट हो रही क्या? हेलो, यस मैम। यस मैम, आ रही है आवाज आ रही है मैम। मैम आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना? यस मैम आ रही हाँ, एक मैसेज था तो शायद उनका कनेक्टिविटी पुअर होगा। ओके, सो फेयर यूज, भी ठीक है। ओके, फेयर यूज इज एन एग्जेम्पशन टू कॉपीराइट लॉ, ठीक है। Created to allow things such as commentary, parody, news reporting, research and education about copyrighted works. देखिए, आप अगर उस काम पे कमेंट्री करते हो, न्यूज रिपोर्टिंग करते हो, रिसर्च और एजुकेशन जैसे नॉन कमर्शियल चीजों के लिए वो अलाउ करता है यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर और पेमेंट टू ऑथर। नाउ इसमें फेयर यूज में एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आप रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग के लिए यूज कर रहे हो, तो अगर आप बोलोगे मैं पूरा के पूरा काम यूज करूंगा उसका, तो ऐसे नहीं होता। इट डज नॉट अलाउ यूज ऑफ अनदर्स एंटायर वर्क, इट डज नॉट अलाउ यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ अनदर्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन, यानी एक्नॉलेजमेंट आपको देना ही देना है, राइट। allows you to use another's copyrighted works without permission or charge. फेयर यूज ऐसा क्लॉज है जिसमें कॉपीराइटेड वर्क्स जो है दूसरों के, उसका कुछ पार्ट अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो विदाउट परमिशन और पेइंग फीस, लेकिन आपको उसको साइटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ फेयर यूज टू बी फेयर, अभी फेयर यूज फेयर है ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या है? ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड, स्मॉल पोर्शंस, ओके, एंड दैट टू बाय गिविंग एट्रीब्यूशन। दूसरा है द यूजर्स मस्ट नॉट हैव हैड टाइम टू ऑब्टेन परमिशन, जैसे स्पॉन्टेनिटी है। जैसे देखिए आपका पीएचडी का काम है, वो कैसा, उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, आपको उस तारीख के अंदर सबमिट करना है, तो आपको उतनी परमिशन लेने की ये नहीं हुई, तो आप उनको ईमेल डाल के रख दो कि हमने केवल पीएचडी पर्पस के लिए आपके काम को इस्तेमाल किया है विद ब्रेविटी, ओनली स्मॉल पोर्शंस वी हैव यूज्ड विद एक्नॉलेजमेंट्स। The use cannot deprive the creator or owners of income from the work. Cumulative effect. अभी देखिए कैसे है कि मेरी किताब है, उसके 2,000 रुपए की क्यों किताब है, राइट। अभी मुझे 20% उसका रॉयल्टी मिलता है पब्लिशर की तरफ से, तो मुझे कितना मिलेगा? अगर 2,000 की किताब है तो 200 ना, है। तो 400 रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग के लाइब्रेरी से इशू करवा लेते हैं और उसका पूरा फोटोकॉपी बना के रख देते हैं, हो गया ना मेरा 400 का नुकसान। तो ऐसा अगर आप कुछ करते हो तो वो उसको फेयर यूज नहीं माना जाएगा, उसको वायलेशन माना जाएगा। अभी देखिए क्लेम्स ऑफ फेयर यूज इन रिप्रोड्यूसिंग कॉपीराइटेड मटेरियल आर इवेल्युएटेड ऑन, कौन से क्राइटेरिया पे इवेल्युएट किया जाता है? एक्चुअली द पर्पस, किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, द नेचर ऑफ द यूज, तीसरा होता है द अमाउंट ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क यूज एंड द इफेक्ट ऑफ द यूज। और देखिए जैसे कॉपीराइटेड वर्क कोई है, जैसे पोएट्री है, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहते हो, कमेंट्री करना चाहते हो, न्यूज रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्पॉन्सरशिप, रिसर्च, तो वो फेयर यूज में आता है, राइट। नाउ
हमने देखा कि फेयर यूज का सबसे पहला क्राइटेरिया था ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क कैन बी यूज्ड। तो स्मॉल अमाउंट क्या हो सकता है? देखिए, मेरे लिए एक पैराग्राफ हो सकता है, आपके लिए 2 पैराग्राफ हो सकता है, किसी तीसरे के लिए 2 पेजेस हो सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट को डिफाइन करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फू कॉन्फ्रेंस, और वो कॉन्फ्रेंस में कुछ रिजोल्यूशंस पास किए। तो वे कहते हैं कि 10% और 3 मिनट्स विच एवर इज लेस ऑफ अ मोशन पिक्चर, उतना ही आप यूज कर सकते हो अंडर फेयर यूज। देन 10% और 1000 वर्ड विच एवर इज लेस ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल। Then you can see 10% or 30 seconds whichever is less of music, है ना? 10% और 15 images whichever is less। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ रिजोल्यूशंस दिए थे। अभी देखिए, ऑथर्स राइट्स जो है, जैसे ऑथर को कॉपीराइटेड वर्क्स पे क्या राइट्स मिलते हैं? तो ये सबसे पहला जो है वो है इकोनॉमिक राइट्स। मतलब अगर कोई दूसरा आपको परमिशन मांगता है तो यू कैन क्लेम फॉर रॉयल्टी। तो इसमें इकोनॉमिक राइट्स में रिप्रोडक्शन, पब्लिशिंग, परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन टू पब्लिक, एडेप्टेशंस, ट्रांसलेशंस, असाइनमेंट्स, इन सब के लिए यू कैन क्लेम फॉर रॉयल्टी। और दूसरा राइट होता है दैट इज कॉल्ड एज मोरल राइट्स। ओके, दीज आर ऑथर्स स्पेशल राइट्स। मोरल राइट्स में आते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में प्लेजरिज्म के लिए भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, मोरल राइट्स जो होते हैं उसको ऑथर्स के स्पेशल राइट्स भी कहते हैं। इसमें आता है राइट टू पैटर्निटी, दैट इज क्लेम ऑफ ऑथरशिप ऑफ द वर्क। और दूसरा होता है राइट टू इंटीग्रिटी। इसमें क्या मिलता है आपको? टू रिस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन एंड मॉडिफिकेशन और अदर एक्ट। देखिए, कोई अगर आपका जो कॉपीराइटेड वर्क है उसको डिस्टॉर्ट करता है या फिर उसको म्यूटिलेट करता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करता है, तो यू हैव द राइट टू इंटीग्रिटी। आप उसके अगेंस्ट में डैमेज चार्जेस क्लेम कर सकते हो, राइट? जस्ट अ सेकेंड ना, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, नॉइज आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये ऑथर के स्पेशल राइट्स है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। देखिए, ये पिक्चर जो है, ओके, इसमें पंडित जवाहरलाल जी नेहरू दिख रहे हैं एंड दिस पर्सन इज अमरनाथ सहगल। ओके, अमरनाथ सहगल जो थे वो स्कल्पचर्स बनाते थे, ब्रॉन्ज के मूरल्स। ओके, तो ये केस है बिटवीन अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1957 में सहगल जी को बुलाया गया और उन्होंने ये जो विज्ञान भवन है दिल्ली का, तो उसके रिनोवेट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक ब्रॉन्ज की मूरल स्कल्पचर हमें बना के दो। उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट किया। 1962 में उन्होंने वो काम को कंप्लीट किया। 40 फीट बाय 140 फीट की मूरल बना के उनको दिया, प्रस्तापित की गई वो। फिर 1979 में उसी बिल्डिंग का फिर से रिनोवेशन निकला। तो द देन अथॉरिटीज जो थी उन्होंने क्या किया कि वो मूर्ति को निकाल के स्टोर हाउस में डंप कर दिया। जब सहगल जी को ये बात पता चली कि उनके कलाकृति के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अंडर द स्पेशल राइट्स, मोरल राइट्स, उन्होंने
डैमेज चार्जेस क्लेम किए 50 lakhs एट दैट टाइम। और अभी क्या हुआ कि कोर्ट में गई केस और कोर्ट ने बोला कि यस, मोरल राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट आर वायलेटेड। तो उन्होंने कहा कि उनको डैमेज चार्जेस दे दो और वो कलाकृति उनको सम्मान के साथ वापस कर दो। ओके, तो इस प्रकार से ऑथर के स्पेशल राइट्स भी कॉपीराइटेड में इंक्लूडेड होते हैं। अभी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं बताऊंगी। क्रेजी 4 नाम का एक फिल्म आया था। दिस केस इज बिटवीन राम संपत वर्सेस राकेश रोशन एंड राजेश रोशन, 2008 बॉम्बे। ये जो क्रेजी 4 फिल्म थी उसमें टाइटल सॉन्ग जो था, इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टाइटल सॉन्ग था उसमें क्या किया राकेश रोशन और राजेश रोशन ने, एक सोनी एरिक्सन मोबाइल के लिए ट्रैक बनाया गया था राम संपत द्वारा। तो वो छोटा सा ट्रैक उन्होंने ये गाने में यूज किया। जो फिल्म थी वो रिलीज होने वाली थी फ्राइडे को। ओके, तो मंडे राम संपत इसके अगेंस्ट में कोर्ट किए गए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में, और उन्होंने डैमेज चार्जेस मांगे 4 करोड़। कोर्ट का फैसला था फिल्म कैन नॉट बी रिलीज विद दिस इन्फ्रिंज्ड सॉन्ग। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ उन लोगों का ऑन थर्सडे इन 2 करोड़ रुपीस। ओके, और उसके बाद वो फिल्म फ्राइडे रिलीज हुई। सो ये वैल्यू होता है कॉपीराइटेड वर्क्स का। उसके बाद में आपको सबको पता है हैरी पॉटर, वो नॉवेल जो है जिसके कॉपीराइट अधिकार जो है वो जेके राउलिंग्स के पास में है। तो हुआ ऐसे था कि सॉल्ट लेक नाम की जगह है कलकत्ता में, तो वहां पे दुर्गा पूजा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया कि हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स कैसल है उस प्रकार से पूरा पेंडॉल बनाया और हैरी पॉटर के चित्र उस पे लगा दिए। ठीक है, तो जब जेके रावलिंग के पास ये चीज गई, उन्होंने सीधा सीधा वो दुर्गा पूजा कमेटी उत्सव मंडल पे 20 lakhs के डैमेज चार्जेस मांगे। अभी देखिए ये लोग कहाँ से लाएंगे 20 lakhs, जो चंदा करके उत्सव मनाते हैं। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि इट इज रिलीजियस सेरेमनी, the committee could continue with the pandal till puja and to file an undertaking stating that they would not use any character from the book without the permission in future. Okay, तो उनको डिक्लेरेशन दिया उन्होंने जेके रावलिंग को, और रिलीजियस ये करके उन्होंने पेंडॉल जो है वो निकालने से मना कर दिया। अभी देखिए और एक केस थी, वाडिया मूवी टोन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाल भारद्वाज। ये 2017 की केस है। एक्चुअली एक मूवी रिलीज हुई थी 1930s में जिसका नाम था हंटर वाली, और उसमें एक यूनिक कैरेक्टर थी फियरलेस नादिया और स्टंट वुमन। तो वो कैरेक्टर जो था वो मूवी का वो कॉपीराइटेड था। फिर द डिफेंडेंट जो है उसने दूसरी मूवी रंगून लाई 2016 में, उसमें कंगना राणावत लीड रोल में थी। ओके, आणि उसका कैरेक्टर का नाम था जानबाज जूली। अभी देखिए फियरलेस नादिया इन 1930, जानबाज जूली इन 2016, but they landed into a legal battle with the Wadiyas when they accused of copywriting the character जानबाज जूली फ्रॉम फियरलेस नादिया। यहाँ पे देखिए कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर स्केच, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, wearing a mask, a whip, being a stunt woman and using the phrase bloody hell, ये सब जो है ये फियरलेस नादिया कैरेक्टर से कॉपी किया था। ओके, सो court held that as there were substantial copying of the character, Rangoon of Vishal Bharadwaj was accused of infringement and was asked to pay bank guarantee of 2 crores. उसके बाद में एक मूवी आई थी गजनी, सबने देखी होगी। ओके,
गजनी का जो तमिल वर्जन था वो 2005 में रिलीज हुआ था और उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो टेम्पररी मेमोरी लॉस से गुजर रहा था, राइट, एंड वाज आउट टू गेट रिवेंज फॉर हिज वाइफ्स मर्डर। और जो हिंदी वर्जन आया गजनी का, उसमें भी टेम्पररी मेमोरी लॉस का केस था, आमिर खान ने किया था वो कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे वाइफ की जगह गर्लफ्रेंड का मर्डर का रिवेंज लेने वो उतरा था। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। और कोर्ट ने क्या कहा, देयर वेर इन्फ्रिंजमेंट एंड इंटरिम इंजंक्शन वाज ऑर्डर्ड। अभी देखिए, आप अगर कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करते हो तो इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें आपको जेल हो सकती है अप टू 3 years, हेलो, बट नॉट लेस देन 6 months, ओके। Fine, which may not be less than 50,000 but may extend up to 2 lakhs, ओके। तो ये जो है, ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अभी देखिए, कल मैंने आपको ओपन एक्सेस पढ़ाया, तो ओपन एक्सेस पे हमने लिखा है कि इट इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, बराबर। लेकिन जो ओपन एक्सेस होते हैं, तो उसमें भी अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हो बाय यूजिंग क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस, ठीक है। देखिए, सीसी बाय अगर आपके पास में है तो आप सभी चीजों को अलाउ करते हो, कॉपी एंड पब्लिश, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, कमर्शियल यूज आप ये करते हो, अलाउ करते हो, मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन आप हाँ कहते हो, चेंज द लाइसेंसेस के लिए भी ओपन है। लेकिन सीसी बाय एसे, दैट इज एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, ओके। तो इसमें आपको लाइसेंस चेंज करने से मना किया जाता है। देन सीसी बाय एनडी, एट्रीब्यूशन एंड नो डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है आप केवल मॉडिफिकेशन और एडाप्टेशन के लिए नहीं बोलते हो, बाकी सब आप अलाउ करते हो। सीसी बाय एनसी, इसमें कमर्शियल यूज आप नहीं करने को कहते हो, बाकी सब अलाउड है। सीसी बाय एनसीएसए, इसमें कमर्शियल यूज और चेंजिंग ऑफ लाइसेंस इसको आप ऑफ कर सकते हो। सीसी बाय एनसीएनडी, ओके, इसमें आप कमर्शियल यूज को प्रोहिबिट कर सकते हो और मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन बाकी सब अलाउ करते हो। तो ये भी एक लाइसेंसिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, नाउ आई एम कमिंग टू प्लेजारिज्म। व्हाट प्लेजारिज्म इज, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको, और इसी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। What plagiarism is? Plagiarism is the act of presenting another's work or ideas as your own. Okay? Plagiarism word comes from Latin word plagiarus. It means kidnapper. देखिए, plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or creative expression of others as your own. I am repeating the definition again. Plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or the creative expressions of others as your own. Okay. It is also called as intellectual theft. It is improper use of others' writings, ideas, artistic expressions, music, etc. Presenting the works of another as one's original work. और चौथा, फेलिंग टू क्रेडिट अनदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू देम। यानी आप एक्नॉलेज नहीं करते हो किसी दूसरे का वर्क यूज करके उसको, तो वो भी प्लेजरिज्म होता है। ऐसे ही गूगल से मिली हुई एक डेफिनेशन आप देख सकते हो। सॉरी,
P for poor documentation, L for loose control on textual meaning, A means act of demoralizing, G getting poor reputation of country, informing the wrong history, act of malpractice, risky literature, invisible referencing, selecting horrific writing and meaningless paraphrasing. देखिए प्लेजरिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है नोइंगली, दूसरा होता है एक्सीडेंटली। देखिए नोइंगली जो लोग प्लेजरिज्म करते हैं उसको इंटेलिजेंट प्लेजरिज्म भी बोलते हैं। इनको पता रहता है कि सॉफ्टवेयर की मर्यादा क्या है, प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर की मर्यादा क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो उसके हिसाब से दे यूज थिजॉरस, दे यूज सिनोनिम्स, दे यूज रिलेटेड वर्ड्स एंड दे मॉडिफाई द टेक्स्ट। और एक्सीडेंटली जो होता है वो कभी कभी हम रेफरेंस देना एक हाथ भूल जाते हैं, दूसरों के जो उद्गार होते हैं जैसे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको डबल कोट करना भूल जाते हैं। तो ऐसी चीजें अगर एक्सीडेंटली होती है तो भी वो प्लेजरिज्म में पकड़ा जाता है। सो ऑलवेज यूज कोट्स व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशंस एंड ऑल। ओके, आगे चलते हैं। प्लेजरिज्म इज अ वेरी सीरियस एकेडमिक ऑफेंस। पहले क्या होता था, स्कूल्स कॉलेजेस में प्लेजरिज्म पाया गया तो उसको वार्निंग दी जाती थी, या फिर उसको रीसबमिशन बताया जाता था, या उसको मार्क्स कम दिए जाते थे, या फेलियर घोषित किया जाता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। यूजीसी ने बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टू कर्ब द प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन। ओके, और वो स्टेप्स कौन से हैं वो हम देखेंगे। ये जस्ट फिलर है। बॉस कहता है सबऑर्डिनेट को, जाओ प्लेजरिज्म का रिपोर्ट बना के लाओ इस साल का। ये व्यक्ति जाता है इंटरनेट पे और इंटरनेट से पूरा प्लेजरिज्म का प्लेजराइज्ड रिपोर्ट बना के लाता है। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। एक होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, मीन्स वर्ड टू वर्ड। ओके, वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट टेक्स्ट, मतलब कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप इसको समझ सकते हो। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरा होता है मोज़ेक। मोज़ेक में क्या होता है कि दो चार फ्रेजेस इधर से, दो चार फ्रेजेस उधर से, सब एक में वीव करता है वो, और उसको कोट में डालना भूल जाता है और उसको एक्नॉलेज करना भी भूल जाता है। तीसरा होता है यूजिंग थिजॉरस, पैराफ्रेजिंग, मीन्स आपको ये पैराग्राफ लेना है ना आपके इसमें, लेकिन वर्ड्स उसके नहीं लेना है, तो आप क्या करते हो कि उसको पैराफ्रेजिंग करते हो, यानी खुद के वर्ड्स में डालने की कोशिश करते हो, और उसके लिए यू टेक हेल्प ऑफ थिजॉरस। ये पैराफ्रेजिंग अगर अच्छे से नहीं हुआ तो भी वो एक प्रकार का प्लेजरिज्म माना जाता है। ओके, किसी दूसरे की आइडिया। अभी देखिए मैं ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये करती हूँ, मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए आपको बताया गया डीमोनेटाइजेशन, आपके क्लास को बताया गया डीमोनेटाइजेशन, इस पे आप 5 लाइन लिखो 2 मिनट में, ठीक है। और मैं आपको ये भी देती हूँ सुविधा कि यू कैन यूज योर मोबाइल फोन्स टू राइट दिस 5 लाइन्स। ओके, तो एक ग्रुप ऐसा है कि वो फटाफट मोबाइल खोलता है, वो पूरे 2-4 लोगों के व्यूज रेफर करता है और खुद की भाषा में वो लिख देता है, ठीक है। ही डज नॉट कॉपी एक्चुअली द वर्ड्स, लेकिन वो रेफर करके अपनी भाषा में लिखता है। दूसरा ग्रुप जो है, वो ग्रुप क्या करता है, वो मोबाइल को टच ही नहीं करता। उसको जितना पता है, एक आम आदमी को जितना पता रहना चाहिए डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वो खुद का खुद लिख लेता है, ठीक है। अभी प्लेजरिज्म किसने किया? प्लेजरिज्म किया पहले ग्रुप ने, क्योंकि उन्होंने 2-3 लोगों के आर्टिकल्स, उनकी आइडियाज इस्तेमाल की, भले उनने उनके शब्द नहीं यूज किए,
ठीक है, ये प्लेजरिज्म की केस है। अगर आप कभी दूसरे पेपर से आइडिया भी बोरो करते हो तो भी आपको उस पेपर का रेफरेंस देना चाहिए, नहीं तो वो प्लेजरिज्म की केस होती है, राइट। और ये दूसरा ग्रुप जो था, जिन्होंने कुछ भी नहीं यूज किया, उनको जो पता है डिमोनेटाइजेशन के लिए उतना उन्होंने लिखा, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नॉलेज। मीन्स किसी भी चीज के लिए बहुत सारे लोगों को जितना पता है उतना ही उन्होंने यूज किया। तो कॉमन नॉलेज यूज करते वक्त आपको रेफरेंस साइटेशन देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ प्लेजरिज्म। अभी ये सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड यूजीसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था रिगार्डिंग सेल्फ प्लेजरिज्म, राइट। तो मैं आपको वो बताऊंगी 2-3 स्लाइड्स के बाद में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, डिक्टो दैट इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, डोंट एवर गो फॉर दिस थिंग, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड था उसमें ये चल जाता था बहुत बार, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट निर्देश यूजीसी ने दिए हैं, उसके लिए पनिशमेंट्स भी दी है, और सॉफ्टवेयर बहुत इजीली पकड़ लेता है इस चीज को, ओके। दूसरा मैंने पैचवर्क प्लेजरिज्म कहा था, मोज़ेक, ओके। तो इसमें क्या करता है ऑथर कि ये 3 लाइन यहाँ से लिए, ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ से लिए, ये डेफिनेशन यहाँ से लिया, और उसको मैंने व्यू कर दिया। हमने कोड भी यूज नहीं किए, मैंने एट्रीब्यूशन भी नहीं दिया, तो वो हो गया पैचवर्क प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया। सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में पूछती हूँ। अभी सेल्फ प्लेजरिज्म का कैसे है मैं आपको बता दूं कि मैंने थीसिस पे के एक पार्ट जो है उसका मैंने पेपर पब्लिश किया, ठीक है। अभी मुझे दूसरा पेपर पब्लिश करना है, तो मेरा प्रीवियस पेपर जो था उसमें से मैंने 2 टेबल फिर से उठाए और तीसरा पेपर बनाया, लेकिन मैंने मेरे पहले पेपर का रेफरेंस नहीं दिया, मेरे खुद के पेपर को मैंने साइट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ प्लेजरिज्म, ठीक है। तो आपके पेपर में से भी डेटा लेते हो, मतलब इट इज प्रीवियसली पब्लिश्ड डेटा, तो आपको उसको ये करना ही पड़ेगा, रेफरेंस देना ही पड़ेगा, वो सामने लाना ही पड़ेगा। अभी देखिए 20 अप्रैल 2020, तो ये पैंडेमिक ईयर में यूजीसी ने एक नोटिस निकाली थी, पब्लिक नोटिस, और वो पब्लिक नोटिस जो है उसको उन्होंने टेक्स्ट रिसाइकलिंग का नाम दिया था, टेक्स्ट रिसाइकलिंग। अभी देखिए, रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement, and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amounts to text recycling, that is self plagiarism, and it is not acceptable. देखिए, हाँ, अपने ही पुराने पब्लिश्ड वर्क में से आपने कुछ पोर्शन लिया या पूरा पेपर लिया विदाउट शोइंग दैट इट इज प्रीवियसली पब्लिश्ड बाय मी, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट न देते हुए ये मेरा द मोस्ट रिसेंट वर्क है और ओरिजिनल वर्क है, नया वर्क है, ऐसा क्लेम करना, ये सेल्फ प्लेजरिज्म है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि टेक्स्ट रिसाइकलिंग में क्या क्या आता है, वो कहता है कि रीपब्लिशिंग द पेपर विदाउट साइटेशन। देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा पेपर जो है वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आ गए, और उसके बाद में कोई एक बुक एडिट कर रहा है तो उसको भी आपने परमिशन दी, और उसमें ये नहीं लिखा है कि इट वाज पब्लिश्ड इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आल्सो, तो वो सेल्फ प्लेजरिज्म होता है। देन पब्लिशिंग स्मॉल वर्क फ्रॉम अ लॉन्गर and previous work without citation, that is also called as self plagiarism. Then reusing the data already used without citation, आपने डेटा यूज कर लिया एक पेपर में, वही डेटा आप दूसरे पेपर में देना चाहते हो पुराना पेपर का रेफरेंस दिए बिना, that is self plagiarism.
Then breaking up longer study in smaller sections and publishing as a new without citation. मतलब मेरा एक बहुत बड़ा 25 पेजेस का पेपर है जिसमें मैंने पूरा इंडिया कवर की हूँ. ओके, फिर मैं क्या करती हूँ कि उसमें से और स्टेट वाइज निकालती हूँ पेपर्स. तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आता है. और वो लॉन्गर पेपर जो है मेरा 25 पेजेस का, उसका साइटेशन दिए बिना मैं हर एक स्टेट का डेटा यूज करती हूँ और नया पेपर बनाती हूँ. दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म. देन पैराफ्रेजिंग ऑफ प्रीवियस वर्क्स विदाउट, जैसे मैंने प्रीवियसली पेपर पब्लिश किया, उसके वर्ड्स मैंने बदल दिए, नया पेपर बनाया और पुराने पेपर का साइटेशन नहीं दिया, तो इट इज सेल्फ प्लेजरिज्म. अभी देखिए यूजीसी ने ये प्लेजरिज्म को कर्ब करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं अभी. हेलो, मैम, प्लेगरिज्म में अगर नहीं पकड़ना चाहिए तो हम लोग उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठानी चाहिए, मतलब किस टाइप से, क्योंकि बहुत सारा डेटा तो हम लेते ही है नेट से, किसी मैं बुक से, बताती हूँ ना, किसी मेरा पेपर से. मेरा मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होने दीजिए, मैं बताती हूँ. ठीक है, ठीक है. आपका प्रश्न जो है ना, हाँ, उसका उत्तर आपको मेरे प्रेजेंटेशन में ही मिल जाएगा. ठीक है. हम्म? ओके. अभी देखिए, हाँ, यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, दैट इज मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री. इट वाज इशूड ऑन 1 जनवरी 2009. और यहाँ पे यूजीसी ने क्या कहा कि ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज, इन्होंने एक एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी बनाना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए. और आपका थीसिस जो है मैंडेटरीली उसको प्लेजरिज्म के लिए चेक किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी अपलोडेड ऑन शोधगंगा. तो ये एक मेजर स्टेप 2009 में यूजीसी ने लिया था. और उसके बाद में आपको सबको पता है शोधगंगा ये पोर्टल मिला और यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग मेंबर ऑफ दिस शोधगंगा. तो जो भी यूनिवर्सिटी एमओयू साइन करती थी उनको पहली फेज में यूजीसी ने टर्निटिन एंड ऑथेंटिकेट ये 2 सॉफ्टवेयर दिए एंड अभी वो उर्कुंड सॉफ्टवेयर दे रहे. अभी देखेंगे आप 2014-15 में 110 यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ऑथेंटिकेट एंड टर्निटिन दिया. 15-16 में उन्होंने उर्कुंड पे शिफ्ट किया और 135 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने एमओयू साइन किया उनको इसका एक्सेस दिया. In September 2019, Influnet provided PDS Urkund to 1000 higher education institutions. In September 2019, MHRD has launched PDS शोधशुद्धि. ये मैंने कल आपको दिखाया था, PDS शोधशुद्धि, है ना. और इसका इन्फ्लिपनेट नोडल ऑफिसर है पोर्टल का. देखिए ये शोधशुद्धि पोर्टल है जिसमें आपको उर्कुंड का लॉगिन दिया जाता है आफ्टर बिकमिंग द मेंबर. अभी हाँ मैम, बोलिए. थेसिस में कितना परसेंट प्लेगरिज्म चेक होता है थेसिस के लिए नागपुर मैडम यूनिवर्सिटी में? मैडम थोड़ा मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने देंगे. ठीक है मैम, ठीक हाँ, क्योंकि अगले स्लाइड्स में है वो सब चीजें. ठीक है मैम, ठीक हाँ, ठीक. थैंक आपको आपको उत्तर जो है मिल जाएगा. ठीक है ठीक ना. है. एक मिनट. हाँ, अभी देखिए दिस इज द मोस्ट रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम यूजीसी और इस नोटिफिकेशन को जाना जाता है प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2018 एंड इसका डेट है 23 जुलाई 2018. राइट. और ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है उसमें पैरा 6 जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यूजीसी ने टू कर्ब द प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. ओके, सबसे पहला रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट shall declare the implement of and implement the technology based mechanism
देखिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो यूजीसी रिकमेंड करती है, तो इसमें से आपके थीसिस, डिसर्टेशंस, पब्लिकेशंस, ये सब रिसर्च पब्लिकेशंस जो होते हैं, उसको आपको चेक करना है, और एट द टाइम ऑफ सबमिशन वो प्लेजरिज्म फ्री होने चाहिए। ओके, तो अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर अभी आज की तारीख में यूजीसी के इसमें क्या है, उरकुंड। दूसरा चीज वो बोलती है द मैकेनिज्म एज डिफाइंड एट ए अबव, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर shall be made accessible to all people who are engaged in research work, including student, faculty, researcher and staff. इन सबको उसका एक्सेस देना चाहिए। तीसरा, कोई भी स्टूडेंट थीसिस सबमिट करता है, ओके, या कोई रिसर्च पब्लिकेशन सबमिट करता है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम और हर, एंड दैट द डॉक्यूमेंट इज his or her original work and free of any plagiarism. ये डिक्लेरेशन तो हम दे ही देते थे पहले के yes this is original work, मेरा खुद का काम है, लेकिन अभी उसमें ये भी आपको डालना है अंडरटेकिंग में, इट इज फ्री फ्रॉम एनी प्लेजारिज्म। उसके बाद में फोर्थ सजेशन उनका ये है, द अंडरटेकिंग shall include the fact that the document has been duly checked through a plagiarism detecting tool approved by higher education institute। यानी आपके डिक्लेरेशन में आपको एक और चीज लगानी है, प्लेजारिज्म का रिपोर्ट लिखना है, और उसमें ये भी लिखना है कि हमने ये थीसिस उरकुंड से चेक किया है, और उसमें जो है प्लेजारिज्म नहीं है, या फिर प्लेजारिज्म जो है वो जितना यूनिवर्सिटी अलाउ करती है उतना ही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डेवलप अ पॉलिसी ऑन प्लेजारिज्म एंड गेट इट अप्रूव्ड by its relevant statutory bodies authorities. The approved policy shall be placed on the homepage of higher education institute website. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हो। वो कहते हैं कि हर एक ने अपनी प्लेजरिज्म पॉलिसी बनाना चाहिए यूनिवर्सिटी ने, और वो आपकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है वहां पे अप्रूव करनी है, और वो आपके होम पेज में उसकी लिंक देनी चाहिए, ठीक है। और next one is each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free. देखिए, अभी केवल स्टूडेंट अंडरटेकिंग नहीं देगा, क्योंकि प्लेजरिज्म होता है तो रिसर्च सुपरवाइजर इज इक्वली ब्लेम्ड। ओके, तो सुपरवाइजर भी एक सर्टिफिकेट देता है कि ये काम मेरे अंडर में हुआ है, वो ओरिजिनल है और वो प्लेजरिज्म से मुक्त है। देन Higher Education Institute shall submit to INFLIBNET soft copies of all master's research programs, dissertations, and theses within a month after the award of degrees for hosting in the digital repository under Shodhaganga e-repository. मतलब आपका थीसिस जब अवार्ड होगा उसके 1 महीने के अंदर आपका थीसिस का सॉफ्ट कॉपी जो है वो इन्फ्लिबनेट के पास में जाना चाहिए और वो शोधगंगा में अपलोड होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी ने खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाना चाहिए, और उसमें आपके पूरे रिसर्च पब्लिकेशंस, थीसिस, डिसर्टेशंस अपलोड करना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता, राइट। अभी देखिए, हम कहते हैं कि 15% प्लेजरिज्म है, तो यूजीसी ने प्लेजरिज्म शब्द को यूज ना करते हुए सिमिलैरिटी चेक यूज किया है, ठीक है। सिमिलैरिटी चेक मीन्स कितना आपका टेक्स्ट जो है वो सिमिलर है, राइट। ये सिमिलैरिटी चेक में उन्होंने कहा क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना है थीसिस का मैटर। ऑल द कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस्ड विथ ऑल नेसेसरी परमिशंस एंड एट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जितने भी कोट्स में लिए हैं, डेफिनेशन हो या फिर किसी के उद्गार हो
जो भी आपने कोट्स में डाला है उसको सिमिलैरिटी चेक में नहीं लिया जाता, और कोट्स में डालने के बाद में उसको अगर परमिशन लेनी थी तो परमिशन लेटर भी आपके पास में है, या फिर परमिशन की जरूरत नहीं है तो साइटेशन आपने दिया हुआ है, ऐसे पूरे वर्क को सिमिलैरिटी चेक से एक्सक्लूड किया जाता है। ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट्स, ये सब चीजों को चेक करने के लिए नहीं देना है आपको। देन ऑल जेनेरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस, इसको भी आपको एक्सक्लूड करना है, राइट, सिमिलैरिटी चेक से। और अभी यूजीसी ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं प्लेजरिज्म के बारे में 2018 से, और आप देखेंगे कि क्या क्या पनिशमेंट्स है इसके लिए। ओके, 2 स्लाइड के बाद दिखाऊंगी। अभी देखो कि कोई किसी की कंप्लेंट आती है कि हमको ये जो थीसिस है इसमें प्लेजरिज्म का डाउट है, तो एक डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होता है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट में वो पैनल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, ठीक है। फिर ये डिपार्टमेंटल एकेडमिक DAIP चेक करता है कि वेदर प्लेजरिज्म इज देयर और नॉट, और उसके पूरे रिकमेंडेशंस जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होता है। जैसे यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर विल बी द चेयरमैन, फिर डीन लोग रहेंगे, HODs रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और कंप्यूटर पर्सन रहेगा, ऐसा एक पैनल होता है। उनके पास में जाता है एंड दे विल डिसाइड कि क्या उसके बारे में निर्णय लेना है। ओके, देखिए ये जो रेगुलेशन है वो क्या रेकमेंड करता है, वो कहता है कि द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज विच शैल इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट समरी। देखिए वो क्या कहते हैं, रिसर्च में आप आपकी ओरिजिनल आइडियाज लिखो, उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखो, समरी लिखो, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस ओनली, एंड शैल नॉट हैव एनी सिमिलैरिटीज। ओके, और उन्होंने एक डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी एंड लेवल ऑफ पेनल्टीज करके एक डायरेक्शन दिया है कि इतना डिग्री सिमिलैरिटी है, इतना परसेंटेज सिमिलैरिटी है, तो उसकी पेनल्टी क्या होंगी। आप थोड़ा ये स्लाइड को देखो, मैं केवल 1 मिनट के लिए म्यूट करती हूँ और आपको मैं एक्सप्लेन। देखिए यूजीसी ने जो पनिशमेंट्स दी है वो उसको आप देख सकते हो। लेवल 0 जो है दैट मीन्स बिलो 10%। अगर सॉफ्टवेयर कहता है कि आपका प्लेजरिज्म जो है बिलो 10% है, सो देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी, मतलब इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन 10
से 40% के दरमियान सिमिलरिटी पाई जाती है, the student will have to resubmit the work within 6 months. यानी आपको सबमिशन वापस दिया जाएगा और रीसबमिट करो 6 महीने के विदिन में. 40 to 60% सिमिलरिटी पाई जाती है आपकी टेक्स्ट में, then student will not be allowed to resubmit the work for 1 year. मतलब 1 साल आपको वापस लेके जाना पड़ेगा आपका थीसिस. और more than 60% सिमिलरिटी अगर पाई जाती है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैंसल्ड. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है टू नो. और अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, ओके, तो बिलो 10% नो पेनल्टी, मोर देन 10%, लेस देन 40%, ऑथर विल हैव टू रिमूव द रिसर्च वर्क. ठीक है, उसको देना ही नहीं आपको. मोर देन 40 एंड लेस देन 60% है तो 3 टायर पेनल्टी है. पहला है ऑथर विल हैव टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट. दूसरा है ऑथर विल नॉट बी गिवन 1 एनुअल इंक्रीमेंट. अगर वो जॉब में है, टीचर है, तो उसको 1 एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा. अगर वो पीएचडी सुपरवाइजर है और उसके पेपर में 40 to 60% तक सिमिलरिटी पाई गई है, तो ऑथर विल नॉट सुपरवाइज एनी न्यू स्टूडेंट फॉर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी फॉर 2 years. और मोर देन 60% उसके पेपर में प्लेजरिज्म पाया जाता है, तो ऑथर विल हैव टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट. ऑथर विल नॉट बी गिवन 2 annual increments, and author will not supervise any new student for masters, MPhil, PhD for 3 years. तो ये पेनल्टीज यूजीसी ने रिकमेंड की है. ठीक है, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया. कितना % प्लेजरिज्म अलाउड है? 10% तक. Yes, ma'am. Thank you. Now, why do people plagiarize? एक तो ignorance, दूसरा lack of knowledge on the ethics of scholarly writing, poor writing skills, then ambition, fierce competition, pressure from seniors, publish or perish system. Then we want the faster results, and lastly, chances of getting caught or action being taken is slim. लेकिन अभी ये चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट, ये जो कारण है वो अभी चला गया है. आप पकड़ने वाले ही हो क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर आ गया है, चोरी तो पकड़ा जाएगी. हाँ, अभी एक्शन यूनिवर्सिटी क्या लेती है, पहले छोड़ दिया जाता था कमिटी बिठा के, लेकिन अभी आपको यूजीसी के गाइडलाइंस को यूज करके पनिश करना है उसको. ओके, नाउ हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म. सबसे पहली चीज है टू अवॉइड प्लेजरिज्म, आपने जितने भी सोर्सेस यूज किए हैं, जहां से भी डेटा लिया है, उसको ऑनेस्टली साइट करो. सबसे पहली चीज, बी ऑनेस्ट इन योर रिसर्च. ओके, दूसरी चीज, कॉपी करते वक्त आप फेयर यूज का ध्यान रखिए. ओनली स्मॉल अमाउंट कैन बी कॉपीड. ओके, देन यूज ऑलवेज ट्राई टू यूज कोटेशन मार्क्स इन द सेंटेंसेस. जो आपका नहीं है, किसी और का है, तो उसमें कोटेशन मार्क्स डालो और प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट करो. तीसरी चीज, पैराफ्रेजिंग. यूज योर ओन वर्ड्स, बट while using your own words, if you are taking help of 2 or 3 documents, तो पैराफ्रेज करने के बाद में भी उसको साइटेशंस दो. ठीक है, as far as possible, see that your research is original and the ideas should be your own. And always we use plagiarism checker software. Okay, so in this way you can avoid the plagiarism in your work. अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उरकुंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है और ये रिपोर्ट है उरकुंड ने जनरेट किया हुआ. वो क्या बता रहा है, 28% सिमिलरिटी इज देयर. तो अभी यहाँ पे देखिए, कोट्स ऑफ कर दो,
ब्रैकेट्स ऑफ कर दो, यानी ब्रैकेट में आपने जो लिखा है वो ये बटन बंद करने से उसका चेकिंग नहीं होगा। कोटेशन में आपने जो लिखा है ये बंद कर दिया आपने, तो कोटेशन में जो भी डेफिनेशन लिए जो भी कुछ है वो और एक्नॉलेजमेंट है तो वो चेक नहीं करेगा। तो ये एक्सक्लूजन बटन्स रहते हैं उसमें जो आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद में हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म में मैंने बताया आपको कोटेशन मार्क्स तो यूज करना ही करना है फॉर शॉर्ट कोट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जैसे लॉ विषय है तो लॉ में जब भी पेपर्स लिखते हो कुछ केस स्टडीज या फिर कुछ स्टैट्यूट्स कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो है आपको देने पड़ते हैं तो वो प्लेजरिज्म में आएंगे ना, चेक करेंगे तो। लेकिन वो केवल उस चीज को समझने के लिए दिए जाते हैं, प्रीवियस केसेस वगैरह। तो एक आपका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप क्या कीजिए कि इंडेंट्स लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। आपने एक कविता चूज की और उसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो आपने वो कविता जो है 12 लाइंस की कविता है वो वैसे की वैसे कॉपी पेस्ट किए वहां पे। आप अगर 12 के फॉन्ट में पेपर लिख रहे हो तो उसको 10 का फॉन्ट करो, ठीक है, इटैलिक्स कर दो उसको, और एक इंडेंट राइट साइड से एक इंडेंट लेफ्ट साइड से ऐसे उसको बीच में लाओ, ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्रिटिसिज्म है वो लिखना शुरू करो। देखो, अगर आपने सिर्फ क्रिटिसिज्म लिखा तो वो पढ़ने वाला क्या वो कविता ढूंढने जाएगा कौन सी कविता है, इसलिए आपने पहले कविता दी और उसके बाद में आपका जो मत है वो दिया। तो वो कविता आपने कॉपी पेस्ट क्यों की, तो फॉर द रेडी रेफरेंस ऑफ द रीडर, राइट। तो इस प्रकार से आप उसको इंडेंट्स का यूज कर सकते हो पैसेजेस के लिए। फिर उसके बाद में अगर आप कोई चार्ट टेबल कोई गूगल इमेज लेते हो, है ना, तो आपको कहाँ से लिया है वो आपको देना है। अगर उस इमेज के लिए परमिशन की जरूरत है तो परमिशन आपने ले लिया है उसका स्टेटमेंट भी वहां देना चाहिए, उसके प्रूफ्स भी जोड़ने चाहिए, राइट। अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि सपोज आप क्या कर रहे हो, थीसिस में डीएनए पे काम कर रहे हो, डीएनए। अभी डीएनए का ब्यूटीफुल इमेज आपको चाहिए। आप सीधा जाते हो गूगल में, गूगल इमेजेस में, और एक सुंदर सी इमेज उठाते हो आपके थीसिस में डाल देते हो, और उसके नीचे आप सोर्स भी साइट कर देते हो कि हमने ये यहाँ से ली है, ओके। अभी देखिए क्या होता है, अभी आपका थीसिस गया चेकिंग के लिए, आपका थीसिस अवार्ड हो गया। अवार्ड होने के बाद में आप क्या करते हो, उसको बुक फॉर्म में पब्लिश करने जाते हो। अभी थीसिस में नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आपने वो डीएनए की इमेज यूज की थी। अभी आप क्या करते हो, उसी इमेज को आपके पेज के फ्रंट पेज पे डाल देते हो मार्केटिंग के लिए, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है, वो किताब मार्केट में आती है और उसका सेल शुरू होता है, तो फिर वो नॉन कमर्शियल पर्पस कमर्शियल हो जाता है, राइट। तो ऑलवेज सी दैट। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मोर देन 70% ऑफ द इमेजेस इन गूगल आर कॉपीराइटेड इमेजेस। तो आप जब भी गूगल इमेज से कोई इमेज लेते हो अपने थीसिस के लिए तो यू प्लीज डबल क्लिक ऑन इट और उसका कॉपीराइट स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ो। अगर उसमें सिर्फ कॉपीराइट मंगला हिरवड़े 2022 ऐसा लिखा है तो आप मुझे वो इमेज ले लो और आप मुझे साइटेशन दे दो, बराबर है, ओके। लेकिन अगर वो इमेजेस में अगर ऐसा स्टेटमेंट है कॉपीराइट मंगला हिरवड़े 2022 कैन नॉट बी reproduced without the permission of the copyright holder, अगर ऐसा लिखा है तो आप गलती से भी वो इमेज यूज नहीं करना विदाउट माय परमिशन। आपको प्रॉपरली मुझसे परमिशन लेनी होगी
और तभी यू कैन यूज। ये चीजें बहुत बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि लोगों की नौकरी पे नौबत आई है। तो हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना। अभी देखिए, ऑल सोर्सेज शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड इफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ अदर पीपल्स रिटन और इलिस्ट्रेटिव मटेरियल आर टू बी यूज्ड, परमिशन मस्ट बी sought। ठीक है। अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये कोप 1999 दैट इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, वहां पे दिया हुआ है। देखिए, ये कोप का होम पेज है, आप देख सकते हो। और इसमें क्या आपको दिया है, फ्लो चार्ट्स, गाइडलाइंस, केस स्टडीज, ये सब मटेरियल आपको मिलेगा। देखिए, कोप के सर्च बॉक्स में मैंने शब्द डाला प्लेजरिज्म, तो उसके मुझे 5 डॉक्यूमेंट्स आए। टेक्स्ट रिसाइकलिंग गाइडलाइंस फॉर एडिटर्स। देखिए, टेक्स्ट रिसाइकलिंग वर्ड काय के लिए यूज किया यूजीसी ने, सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए, वो यहाँ से लिया है। ओके, सेल्फ प्लेजरिज्म। ना आगे चलते हैं, ये उसके गाइडलाइंस है टेक्स्ट रिसाइकलिंग के। बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइंस यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस बनाए हैं। देन रिट्रैक्शन गाइडलाइंस। अभी रिट्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अगले स्लाइड्स में। देन कोऑपरेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड जर्नल्स ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी केसेस। Then a short guide to ethically editing for ethical editing of new editors. Principles of transparency and best practice. तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स है। ये कोप में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है जो आपको समझाता है ये सब रिसर्च मिसकंडक्ट के बारे में। ओके, और एक केस स्टडीज है, जैसे मैंने प्लेजरिज्म शब्द डाला उसमें, तो 618 केस स्टडीज मुझे मिले, जैसे उसमें एक्सटेंसिव प्लेजरिज्म, डबल प्लेजरिज्म, सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म, ऐसे सारे केस स्टडीज है वो। और ये देखिए, ये फ्लो चार्ट्स है। ये फ्लो चार्ट कौन सी गाइडलाइन देता है, व्हाट टू डू इफ यू सस्पेक्ट रिडंडेंट दैट इज डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज आपको करना है वो केस में। तो ऐसे फ्लो चार्ट्स भी दिए हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी है, रिट्रैक्शन गाइडलाइंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रैक्शन, वो भी हम समझ लेते हैं। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका पेपर पब्लिश हो गया और पब्लिश होने के बाद में उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन आया कि इसमें गलत डाटा है, इसमें कुछ मेथड्स गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसकी जांच होती है और पब्लिश होने के बाद में भी उस पेपर को पब्लिकेशन स्टेटस से रिट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। पब्लिश हो गया लेकिन पब्लिश होने के बाद में उसमें गलतियां नजर आई तो पेपर पब्लिकेशन स्टेटस से हट जाता है। अभी देखिए, रिट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो करेक्टिंग द लिटरेचर के लिए होता है, नॉट टू पनिश द ऑथर। करेक्टिंग द लिटरेचर मीन्स के आपके नेक्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स को सही सही डाटा जाना चाहिए, फॉल्टी डाटा नहीं जाना चाहिए। ओके, so retraction is a mechanism for correcting the literature and alerting readers to articles that contain such seriously flawed or erroneous content or data that their findings and conclusions cannot be relied upon। ठीक है, unreliable content or data may result from honest error, new mistakes or research misconduct। ठीक है, so the main purpose of retraction is to correct the literature and ensure that its integrity rather than to punish the authors। अभी आपको बता दूं, अगर आप गूगल में जाएंगे और रिट्रैक्शन डाटाबेस करके कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको एक डेटाबेस आता है। देखिए, ये इस प्रकार से वो डेटाबेस दिखता है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में फूड साइंस लिया, तो फूड साइंस के इतने सारे पेपर्स जो है 109 पेपर्स, दिस इज इन केस ऑफ पबमेड डाटाबेस। ठीक है, पबमेड डाटाबेस मेडिकल का डेटाबेस है, तो उसमें से फूड साइंसेस के 109 पेपर्स पहले पब्लिश किए गए और बाद में रिट्रैक्ट किए गए।
अभी देखिए कौन कौन पब्लिशर्स थे उस जर्नल के, एल्सवियर, विले, एल्सवियर, यानी बड़े बड़े पब्लिशर्स जो है उनसे भी ये होता है और वो रिट्रैक्ट कर देते हैं। उनको जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आता है दे विल रिमूव योर पेपर फ्रॉम पब्लिकेशन स्टेटस। जैसे मैंने फूड साइंस इंडिया देखा तो 109 में से 12 आइटम्स जो है 12 पेपर्स इंडिया से पब्लिश्ड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पब्लिशर के नाम स्प्रिंजर, टेलर एंड फ्रांसिस, राइट, वर्ल्ड वाइड रिप्यूटेड पब्लिशर्स। इसमें मैंने केवल इंडिया डाला। इंडिया से टोटल कितने पबमेड में पेपर्स पब्लिश हुए और बाद में रिट्रैक्ट हुए, तो वो है 1237 पेपर्स पब्लिश्ड बाय द जर्नल्स of reputed publishers were withdrawn, okay, retracted। अभी यहाँ पे मैंने केवल एल्सवियर नाम डाला। एल्सवियर ने ऐसे कितने पेपर रिट्रैक्ट किए हैं पबमेड में, उन्होंने 3184 पेपर्स जो है उसको रिट्रैक्ट किया है, ठीक है। अभी रिट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, तो ये डेटाबेस के आधार से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे आपका पेपर रिट्रैक्ट हो सकता है। वो कारण मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ऑथर इन अनरिस्पॉन्सिव, ब्रीच ऑफ पॉलिसी बाय ऑथर बाय थर्ड पार्टी, देन साइट्स प्रायर रिसर्च रिट्रैक्टेड वर्क। अभी ये देखिए कितना मजेदार किस्सा है। अगर पहले कोई पेपर पब्लिश हो गया, उसको बाद में रिट्रैक्ट कर दिया और उसी पेपर में का डेटा आप यूज कर रहे हो और आप उस पेपर का रिट्रैक्टेड पेपर का रेफरेंस देते हो, तो आपका पेपर भी रिट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले देखिए थोड़ा सा रिट्रैक्टेड पेपर्स के डेटाबेस को भी चेक करना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ सिविल प्रोसीडिंग्स, कंप्लेंट्स अबाउट ऑथर, कंप्लेंट्स अबाउट कंपनी, complaints about third party, concerns or issues about authorship, about data, about image, about referencing and attributions, then about results, about third party involvement, conflict of interest, contamination of cell lines, tissues, contamination of materials, then contamination of reagents, then copyright claims, उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डेट ऑफ रिट्रैक्शन, देन डूइंग द राइट थिंग, duplication of article, data, image, text, then error by journal publisher, by third party, in analysis, in cell lines, in data, in image, in materials, in methods, errors in results and conclusions, error in text, ethical violations by author, by third party, euphemism for duplication, then for misconduct, for plagiarism. See, there is one more, fake peer review, then falsification or a fabrication of data, image, results, forged authorship, then hoax paper, then आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, लैक ऑफ अप्रूवल, देन आप यहाँ पे देख सकते हो और कुछ manipulation of images, manipulation of results, miscommunication by author, company, journal publisher, third party, then misconduct, misconduct, फिर आप देखेंगे कि नॉन पेमेंट ऑफ फीस, देन you can see plagiarism of article, plagiarism of data, plagiarism of image, plagiarism of text, then publishing ban, then retract and replace. So there are so many reasons on the basis of which your paper gets retracted. अभी जस्ट मैंने यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी डाला, तो पुणे यूनिवर्सिटी के 3 आइटम्स है जो पब्लिश होने के बाद में उन्होंने हटा दिए। सो दिस डेटाबेस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेब, आप इसको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स मैंने देखे तो देखिए कितना है, 12191, 12,000 से ज्यादा है। देखिए ये जो पैंडेमिक आया था इसमें कोरोना वायरस पे बहुत सारे पेपर्स आए थे, तो रिट्रैक्शन वॉच डेटाबेस में मैंने कोविड-19 डाला,
तो मुझे इतने सारे पेपर्स मिले, मतलब उस वक्त में पेपर्स बहुत पब्लिश हुए, उतनी ही गति से वो रिट्रैक्ट भी होते गए, क्योंकि उसमें से डाटा जो था, और बहुत सारे इश्यूज थे रिट्रैक्शन के लिए। ये जो पब्लिकेशन एथिक्स .org जो है कोप का डॉक्यूमेंट, उसमें देखिए वो कुछ ई लर्निंग के लिए आपको कुछ यहाँ पे पेजेस दिए हुए उन्हें ना, तो आपको ये सब चीजें पढ़ लेना चाहिए। अभी देखिए कोलैबोरेशन कैसे होता है। कोलैबोरेशन हम करते हैं, दो यूनिवर्सिटीज मिलके प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर दो ऑथर्स मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन एथिकल होना चाहिए। ये कोलैबोरेशन अगर एथिकल नहीं हुआ तो वो भी रिसर्च मिसकंडक्ट में जाता है। हम कोलैबोरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के स्किल्स को यूज किया जाता है टू मेक द बेटर रिसर्च प्रोडक्ट। ओके, तो इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। एक क्लास में दो बच्चे हैं, ए और बी। उन्होंने कोलैबोरेट करने का डिसाइड किया। ए ने क्या किया? ए ने रिसर्च नोट्स बनाए कंपाइल किए, बी ने मेन फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई किए, और दोनों ने अपना अपना पेपर लिखा अलग अलग। तो ये क्या है? इज इट अनएथिकल कोलैबोरेशन? इज इट प्लेजरिज्म? इज इट बोथ अनएथिकल कोलैबोरेशन एंड प्लेजरिज्म और एक्सेप्टेड कोलैबोरिज्म? तो ये दोनों इसमें आता है। इट इज अनएथिकल कोलैबोरेशन और ये प्लेजरिज्म भी है, राइट? आगे चलते हैं। व्हाट इज रिसर्च मिसकंडक्ट? Research misconduct means fabrication, falsification, or plagiarism in proposing stage, performing stage, reviewing of research and in reporting research results. ये चार स्टेप्स में अगर फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजारिज्म पाया जाता है तो उसको रिसर्च मिसकंडक्ट कहते हैं। See, fabrication, falsification and plagiarism are three cardinal sins in research misconduct. अभी fabrication का मतलब क्या है? Fabrication means construction and or addition of data, observations or characterizations that never occurred in the gathering of data or running experiments. यानी आपका एक्सपेरिमेंट रन होता है, उस ड्यूरेशन में आपको ऐसी चीजें जो कभी नहीं मिली वो आप ऐड कर देते हो। दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन क्या है? कि आपको कुछ चीजें मिली है, लेकिन उससे आपका क्लेम, हाइपोथेसिस ये प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हमारा कॉपीराइट का एक्ट है, उसमें जो सेक्शन 57 है, तो वो ऑथर को स्पेशल राइट्स देता है, क्लेम ऑफ ऑथरशिप, है ना? तो अगर आपके काम का कोई मिसयूज होता है तो यू कैन यूज दैट स्पेशल राइट्स। ठीक है, ये सजा तो मैंने आपको बता दी कॉपीराइट वायलेशन की, है ना? 6 months to 3 years जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज और समझाई थी डिमोनेटाइजेशन में, कॉमन नॉलेज मीन्स नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान है, बच्चा बच्चा जानता है, तो इसको कहते हैं कॉमन नॉलेज। ऐसा कुछ आप लिखते हो तो उसके लिए इंडिया रेफरेंस एनुअल वगैरह की जरूरत नहीं होती है रेफरेंस देने की। अभी देखिए रियल लाइफ प्लेजरिज्म स्कैंडल्स में कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लाई। ये जो है डॉरिस गुडविन, वो पुलिट्जर, एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलिट्जर अवार्ड, तो उसको मिला था और वो पुलिट्जर प्राइज के बोर्ड पे भी थी, राइट? बट
She was forced to step down from the Pulitzer board after she was found to have accidentally used another's words in one of her books. ठीक है, दूसरी केस, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर मेडोना इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ओके, she was fired from her position at Columbia University after being accused of rampant plagiarism in her work. रैम्पेंट प्लेजरिज्म यानी बार बार लगातार, एक पेपर में पाया, दूसरे पेपर में पाया, तीसरे पेपर में पाया. और ये बहुत बड़ी केस हुई थी, स्कैंडल हुआ था. ये है जेसन ब्लेयर, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्टर थे. और 2002 से 2005 में उन्होंने जो स्टोरीज लिखी, 40 स्टोरीज, वो प्लेजराइज थी और फैब्रिकेटेड थी. ओके, एंड ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब. The top 2 editors of the newspaper resigned as a result of the scandal. देखिए, उसका खुद का करियर तो उसने गिव अप कर ही दिया, लेकिन वो बेचारे टॉप 2 एडिटर्स जो थे उनको भी रिजाइन करना पड़ा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये केस है. उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल प्लेजराइज था. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसकी एडमिशन रिवोक की. अभी देखिए, आप सबको पता होगा कि कॉलेज में नैक कमिटी आती है और वो उनको दर्जा देती है, राइट. ये टाइम्स ऑफ इंडिया 23 फरवरी 2013 की न्यूज है. अभी ये नैक कमिटी नैक करने के लिए आपको सबसे पहले आपका खुद का एसएसआर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट यूजीसी को देना पड़ता है, नैक को देना पड़ता है. ये सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में आप पूरा लिखते हो, आपके कॉलेज का क्या स्थिति है, क्या उपक्रम है, क्या क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए, वो सब लिखना पड़ता है, राइट. तो ये जो एसएसआर हम लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, जिनको A+ मिला, A++ मिला, ऐसे कॉलेजेस के एसएसआर को पहले स्टडी करते कि उन्होंने कैसे लिखा. उसके बाद में हम अपना लिखते हैं. उसका उद्देश्य कॉपी पेस्ट करना नहीं होता. उसका उद्देश्य होता है कि हम भी ये चीज कर रहे हैं, अरे ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, तो जस्ट रेफरेंस के लिए हम करते हैं. लेकिन ये क्या हुआ था, देखिए केस. Plagiarism in colleges was always associated with doctoral students and faculty members who copy from the hard work of others and pass it off as their own. Now, colleges applying for government accreditation have been found indulging in the same shameful practice. For example, pages 38 to 139 of the SSR submitted by एक मीरत का कॉलेज है, तो वो मीरत के कॉलेजेस ने अपना एसएसआर सबमिट किया. मीरत का एजुकेशन कॉलेज है वो. एंड उन्होंने लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई, जिनका हाई ग्रेड था नैक का, उनका एसएसआर रिफर करके उसमें से 38 to 139 पेजेस डिक्टो कॉपी पेस्ट किए अपने एसएसआर में, डिक्टो वर्ड टू वर्ड. देखिए कितना है, 101 पेजेस उन्होंने कॉपी पेस्ट किए. लेकिन ये चीज ध्यान में कैसे आई, तो हम कहते हैं ना कि बैड लक बहुत बुरा था. देखिए, तो योगायोग जो बोलते हैं वो यहाँ पे है, आप देखेंगे. द प्लेजरिज्म केम टू लाइट एक्सीडेंटली. द नैक हैड अपॉइंटेड S. Sebastian, the principal and secretary of Loyola College of Education, as the member coordinator on the peer review team that visited that Meerut College. Okay, मतलब लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एसएसआर से इन्होंने 101 पेजेस कमिटी पे उसी कॉलेज का प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी आया. ठीक है, तो ये सेबेस्टियन सर का मीडिया ने मुलाकात ली, तो वो उन्होंने कहा कि जब मैं उनका एसएसआर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे फीलिंग आया कि मैं मेरे खुद के कॉलेज का एसएसआर पढ़ रहा हूँ. तो मैंने टैली किया, तो 101 पेजेस वेर कॉपीड एंड पेस्टेड. उसके बाद में देखिए, ये बहुत बड़ा दुखदायक प्रकार हुआ. एक 26-year-old faculty of Wadia Women's College committed suicide by hanging herself at her house. Okay,
The deceased was upset after allegation of plagiarism in her MPhil thesis, and the deceased was scared that she would lose her job. Her family members told police. उसने हैंग कर लिया, खुद को ही खत्म कर लिया। देखिए बड़े बड़े लोगों के ऊपर इसके इल्जाम है। आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन साइंस एडवाइजर CNR Rao has apologized for not noticing some copied text in a paper published last year. और एक दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिवीजनल ब्रांच है उनके ऊपर का एलिगेशन आया है बाय स्पाइसी IP ब्लॉग। ये 2015 की केस है। देखिए the Delhi High Court plagiarized 33 paragraphs of its judgment in Roche versus Cipla case from a law review article written by Shwetashri Muzumdar and Ishan Ghosh in the Queen Mary Journal of Intellectual Property. देखिए श्वेतश्री मुजुमदार और ईशान घोष ने एक पेपर लिखा, रिव्यू पेपर, क्वीन मेरी जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उस पेपर में से 33 पैराग्राफ्स दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके जजमेंट में दिए। ठीक है, अभी वो प्लेजरिज्म जो है वो सामने तो आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट एक्नॉलेज द ट्रूथ of the plagiarism report in an order passed on 8 December 2015 and apologized to the author. माफी मांगी उन्होंने, लेकिन वो प्लेजरिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने वहां पे एक इंटर्न काम कर रही थी और उसको फैक्ट्स लिखने के लिए बोला था, तो उसके ऊपर डाल दी। देखिए मुल्कराज आनंद, इंद्रानी आइकट, देन VN नारायणन, देन BS राजपूत, ओके, जो वाइस चांसलर थे, देन शिव खेरा जैसे मोटिवेशनल राइटर। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो प्लेजरिज्म की केस में फंस चुके हैं, राइट। अभी देखिए मेरे खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि एक मैंने थीसिस इवेल्यूएट करने आया था राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से, और डमी टाइटल बताती हूँ मैं, एग्जैक्ट टाइटल नहीं बताऊंगी। तो उसका टॉपिक था कलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन गुजरात स्टेट, ओके। तो वो मेरे पास आया थीसिस 2013 में, ठीक है। तो एटलीस्ट उसमें 2010 तक का तो डाटा होना चाहिए ना। थीसिस बहुत अच्छा वो लिखा हुआ था, अंग्रेजी में था थीसिस। तो मैंने जब डेटा देखा तो डेटा है 1986 टू 1999 का डेटा, वो 2012 में कैसे ये होगा, तो मुझे थोड़ा डाउट आया। तो मैंने चेक किया, शोधगंगा वगैरह चेक किया था मैंने उस वक्त में। तो शोधगंगा में मुझे एक थीसिस मिला जो 2003 को अवार्ड हुआ था, ठीक है। तो वो थीसिस था गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। ये बंदे ने क्या किया, उसको अंग्रेजी में किया, उसने सेम डाटा यूज किया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने यस वही रखे। देखिए वो थीसिस के लिए जेन्युइन डाटा था और पीरियड भी जेन्युइन था, 1986 टू 1999। 2001 में उसने सबमिट किया होगा, 2003 में अवार्ड हो गया, इट इज ओके। लेकिन यह बंदे ने वो ईयर भी बदलने की कोशिश नहीं किया। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी PPTs होती है तो उसमें के कुछ डेटा हम ले लेते हैं वर्ड में, तो तकलीफ होती है। अभी एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन को 100 साल पूरे हुए थे 2011 में, तो हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। वो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर के जिम्मेदारी पे हम इनको बुलाने वाले थे, डॉक्टर करसी दप्पा, प्रोफेसर करसी दप्पा सर। और ये प्रोफेसर करसी दप्पा सर जो थे वो बहुत बड़ा हस्ती है हमारे विषय के, UGC मॉडल करिकुलम कमेटी के वो अध्यक्ष रह चुके थे। तो उनको हम बुलाने वाले थे। हमारे डिपार्टमेंट में हम 3 लोग हैं। तो पूरे देश भर से हमको पेपर्स रिसीव हुए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के, तो हमने एडिट करने को लिया। तो एक पेपर आया, तो ऑथर का नाम देखा, तो मैं उनको मेरे स्टूडेंट लाइफ से जानती हूँ,
और उनके पूरे लिमिटेशंस मुझे पता है। तो एकदम फर्राटेदार अलंकृत इंग्लिश में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया का इतिहास लिखा था। तो मुझे डाउट है क्योंकि वो बंदे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं आता है, तो वो इतना अच्छे लैंग्वेज में पेपर कैसे लिख सकता है, मुझे डाउट हुआ। तो मैंने सब चेक किया पर कहीं पे भी चोरी नहीं मिली मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये बंदा ऐसा पेपर लिख ही नहीं सकता, ये शब्द इसके है ही नहीं। फिर मैं लाइब्रेरी में गई, वहां से लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की जितनी भी किताबें थी वो निकाली, और एक कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम में मुझे एक पेपर मिला, जो पेपर ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं था, ई फॉर्म में नहीं था, पुराना पेपर था, और उसी को ये बंदे ने टाइप करके कॉन्फ्रेंस के लिए खुद के नाम से भेजा। राइट। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि वो पेपर प्रोफेसर करसी दप्पा सर ने लिखा था। देखिए, अगर करसी दप्पा सर ने वो पेपर पब्लिश हुआ देखा रहता था तो क्या हालत हो गई रहती थी हम लोग एडिटर्स की। राइट। तो इस प्रकार से जो अनफेयर चीजें हैं वो मत कीजिए, मेरे कहने का मतलब है। अभी देखिए, देर आर सम एंटी प्लेजरिज्म टूल्स, जैसे छोटा सा प्लेजरिज्म है तो गूगल का सर्च बॉक्स में वो पैराग्राफ डाल दो, गूगल का सर्च बॉक्स ही बता देता है आपको कहाँ कहाँ क्या क्या है। देन ये जो है टर्निटिन, ऑथेंटिकेट, ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। राइट। लेकिन बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये टर्निटिन का पेज है, आप देख सकते हो इसके बारे में जानकारी। और ये 30 लैंग्वेजेस को चेक करता है। और ये उरकुंड का पेज है जो मैंने आपको बताई हूँ, आपके पास एक्सेस होगा तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आप। सो आप जब भी आपका थीसिस या कोई रिसर्च पब्लिकेशन प्लेजरिज्म चेक करने के लिए देते हो तो आप केवल वो मैकेनिकल रिपोर्ट पे डिपेंड मत रहिए। मेरा ऐसा कहना है कि आप और आपके गाइड बैठिए, जहाँ जहाँ कॉमन नॉलेज है उसको डिलीट करवाइए, जहाँ जहाँ आपने प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट्स दिए हैं उसको डिलीट करवाइए रेफरेंस चेक करते हुए। तो आपको बैठ के वो चीज करनी पड़ेगी, सिमिलैरिटी चेक परसेंटेज को कम करने के लिए, क्योंकि प्लेजरिज्म चेक करके आपको जो देता है वो एक क्लेरिकल हैंड होता है, जिसको सिर्फ पता होता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना। राइट। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आप हो ना, तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको वो यूज करो आपके रिसर्च के लिए, ये रिकमेंड नहीं करूंगी। क्यों रिकमेंड नहीं करूंगी? क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर जो है उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होती है। दूसरी चीज, आपका डाटा वहां पे जाने के बाद उस डेटा का क्या होता है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपने आपका थीसिस यहाँ पे दे दिया, डेटा यहाँ पे दे दिया, और पता चला कि आपका थीसिस अवार्ड होने के पहले किसी और ने वो डेटा पब्लिश कर लिया, तो वो मत यूज करो। सिर्फ मैं आपको नाम बताती हूँ, प्लैक्सकैन है। देखिए, प्लैक्सकैन इस प्रकार से आराम से ये होता है, प्लैक ट्रैकर है, प्लेजरिज्मा.net है, इस प्रकार से उसमें रिपोर्ट निकलता है। उसके बाद आप देखेंगे प्लेजरिज्मा.net 64% ओरिजिनलिटी बता रहा है वो। ये वाइपर नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है, फ्री प्लेजरिज्म चेकर है। देखिए, आप ऑनेस्ट रहो, हर चीज का रेफरेंस अच्छे जो कल मैंने बताया था स्टाइल्स, तो स्टैंडर्ड स्टाइल्स को यूज करके दो। दीज आर ऑल स्टाइल मैनुअल्स, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स भी है, जोटेरो, मेंडले, एंड नोट। तो ये सब चीजें करने से आपका प्लेजरिज्म का परसेंटेज कम आएगा। अब देखिए, बिल गेट ने भी एक्सप्रेस किया है प्लेजरिज्म इश्यू के ऊपर में। उन्होंने इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहा है, और उन्होंने कहा है कि इट इज डन इन 3 ways: स्टीलिंग विद द वेब, स्टीलिंग विद इन द वेब, स्टीलिंग फ्रॉम द वेब। ओके। ये क्या है आपको सबको पता है, आपने टाइटैनिक देखा है ना, आइसबर्ग। आइसबर्ग की विशेषता क्या है
कि 10% विजिबल होता है, बाकी पूरा वो सी के बीनेथ होता है, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो आपका बिहेवियर है, आपकी कैपेसिटीज दिखती है लोगों को, ये 10% है, लेकिन आपके अंदर 90% कन्विक्शंस है, बिलीफ्स है, वैल्यूज है, आइडेंटिटी है आपकी ओन, राइट। और ये सब जो है आपके वैल्यूज, स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिव्स, एथिक्स, बिलीफ्स, इसका डायरेक्ट परिणाम जो है वो आपके बिहेवियर पे होता है। तो इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करो एंड बी ऑनेस्ट इन योर रिसर्च। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक प्रीति, कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं आप। येस मॅडम. डाउट्स असतील काही तर विचारा। मैडम, हाँ जी, जब हमारा थीसिस डिफेंस हो जाता है उसके बाद में चेक करने के लिए जाता है क्या यूनिवर्सिटी से? आपको सबमिशन के वक्त ही चेक करना पड़ता है। अच्छा, सबमिशन के वक्त ही चेक करना पड़ता है। और मैडम, ये जो आपने बताया कि जो हमारा स्क्रिप्ट होता है पर्टिकुलरली कंटेंट्स टू लेकर जो हम लोगों ने कंक्लूजन तक लिखा, उतना ही देना पड़ता है ना? हाँ, मैंने बताया ना आपको क्या क्या एक्सक्लूड होता है। बाकी बाकी चीजें नहीं, जैसे रेफरेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट, बाकी वो चीजें नहीं, हो वो जाती सब है। चीजें देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और हम लोगों को वो वापस कब तक मिलते हैं तो? आपको 1-2 दिन में दे देते हो सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद में हम यानी उसको ये कर सकते, प्रिंट करके मॉडिफाई करना पड़ता है आपको। अगर मॉडिफाई कर सकते कुछ, या बाकी हम्म नेक्स्ट वो प्रोसेस। सॉफ्टवेयर बताता है ये चीज आपने यहाँ से ली है। सॉफ्टवेयर ये भी बताता है ये चीज आपने यहाँ से लिए, लेकिन रेफरेंस देना भूल गए, तो वहां पे रेफरेंस डालना पड़ता, फिर वो बटन को ऑफ करना पड़ता, तो 2% कम हो जाता प्लेजरिज्म। दूसरा, आपने कोट में डाला है तो कोट का वो लेता ही नहीं है, हमने वो बटन ऑफ कर दिया था, कोट कोट ऑफ कर दिया तो कोट का मैटर रीड ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से यू कैन अवॉइड। हाँ, एक्चुअली कोई कोई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना कि दिस इज फैक्ट, तो दिस इज दिस प्रूव। हम्म हम्म उनके उस केस में हम लोग तो वो डायरेक्टली उसको हम लोगों को अपने टेक्स्ट में भी, अपने भी राइटिंग में वो डालना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू दिस दिस बुक या दिस साइटेशन, दिस हम्म स्टेटमेंट इज देयर एंड दिस प्रूव हम्म इज देयर, एज पर दिस प्रूव माय experiment or my observation falling with this in coordinates with this। तो उस केस में क्या होता है मैडम, हम तो उनका स्टेटमेंट लिखेंगे हमारे थीसिस में। मैंने तो रेफरेंस दो ना। हाँ, रेफरेंस तो देंगे ही देंगे, रेफरेंस तो तो रहेगा ही। फिर क्या है रेफरेंस। अच्छा, थैंक यू मैडम। और किसी को कुछ पूछना है? समजलं का विचार? पहले तो आप सब लोग हैं ना यहाँ पे, ये सो गए? आर यू ऑल देयर? मैम यस है मैम। मैम। हाँ हाँ, तो समझा मैडम ने जो भी चीजें बताई है? हाँ मैम। मैम, जो हाँ, वो कोलैबोरेशन वाला आपने एक एग्जांपल दिया कि ए एंड बी आर कोलैबोरेटिंग, वो वाली स्लाइड मैम एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप, कि सी आंसर कैसे है उसका? बताती हूँ। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? एक साथ आके काम करना एक इश्यू पे, राइट। अभी देखिए ये एग्जाम्पल मैंने कैसे किया कि एक क्लास में असाइनमेंट दिया है आपको और 2 लोगों ने कोलैबोरेट करने का डिसाइड किया। ए ने क्या किया? ही कंपाइल्ड द रिसर्च नोट्स। और दूसरे ने क्या किया? मेन फाइंडिंग्स को आइडेंटिफाई किया, राइट। मतलब आधा काम ए ने किया, आधा काम बी ने किया। लेकिन ए ने क्या किया? अपना खुद का ओन ओरिजिनल पेपर बना लिया, मेन फाइंडिंग्स यहाँ से लेके, बी से लेके। और बी ने भी अपना ओन पेपर किया ए के रिसर्च नोट्स लेके। तो इसमें क्या होता है?
इन्होंने एक दूसरे का डेटा यूज किया, दैट इज नॉट एक्चुअली द कोलैबोरेशन, एथिकल कोलैबोरेशन। एथिकल कोलैबोरेशन क्या होता है? हाँ, आपने आधा काम किया, आपने आधा काम किया, दोनों के नाम से एक पेपर बनाया, समझ में? हाँ, को ऑथर। हाँ, तो दोनों के नाम से एक सिंगल पेपर बनाना है। ए ने इसका डेटा यूज करके, ए ने अपना पेपर बना लिया अपने नाम से, बी ने इसका डेटा यूज करके खुद का, तो वो प्लेजरिज्म भी हुआ, और दूसरी चीज वो अनएथिकल कोलैबोरेशन भी हुआ। मतलब मैम पेपर एक ही होना चाहिए और दोनों के नाम रहने हाँ, चाहिए। दोनों के नाम रहने चाहिए ना उसमें, अच्छा अच्छा, तब सही रहेगा ना? तब सही हाँ, रहेगा। ओके ओके। हाँ, और मॅडम त्या केसेस हॅलो बोला. मॅडम त्या केसेस पॉइंट काही तुम्ही व्ह्यूज केले होते जसं गजनी आहे बाकीच्या त्या हम्म, सेगल वगैरे हम्म. तर कुठल्या कॉपीराईट ऍक्ट कुठला ऍक्ट 1957, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957. मैडम हाँ, मैडम एक ऐसे पूछना था कि हाँ, अभी हम लोग कोई हमारे सैंपल एनालिसिस करना है मैंने, हम्म, और हमारे पास कुछ रिप्यूटेड लैब्स है, लिमिटेड लैब रहते हैं, हम्म, हम उनके पास में हमारा एनालिसिस के लिए प्रपोजल भेजते हैं। हम्म, उस केस में अगर वो लोग बोल रहे हैं कि आपका जो ये रहेगा उसमें हमारा नाम चाहिए एज अ ऑथर करके, को ऑथर करके, हम्म, रहे सेकंड थर्ड फोर्थ जो हम्म, कुछ भी रहेगा, तो हम्म. उस केस में हम लोगों ने क्या करना चाहिए? डालना चाहिए ना उनका नाम. यू आर उनका नाम यूजिंग देयर रिसोर्सेस ना. देयर रिसोर्सेस तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस केस में वो हमें केमिकल का भी चार्जेस लगा रहे हैं, बाकी जिनका जो मटेरियल वो हो रहा है, यूज हो रहा है, उसका भी चार्जेस देना है, और उसके बाद में उनका लैब जो यूटिलाइजेशन होता है उसका ये भी देना है, जो लोग देखिए रहेंगे। देखिए देखिए देखिए, ये ना प्योरली वो लैब और आपके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, अदरवाईज वो मॅडम इश्यू त्यांना एक्नॉलेज केलं तरी चालतं ना, रिसर्च पेपर मध्ये खाली हो, जे असतं ना. अॅक्नॉलेज केलं तरी सुद्धा चालतं. हा त्याच्यामध्ये बघ, तेच. हे जे आहे ना एथिकल, आय विल जस्ट शो यू. एक मिनिट. विल जस्ट शो यू. ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है देखिए, आईसीएम जेई ने उसको बताया है कि ऑथरशिप क्रेडिट शुड बी बेस्ड ऑन substantial contribution to conception and design or acquisition of data or analysis and interpretation of data, drafting the article or revising it critically for important intellectual content, and final approval of the version to be published. तो उन्होंने क्या कहा कि ऑथरशिप के लिए ये क्राइटेरिया होते हैं: सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू कंसेप्शन एंड डिजाइन, एक्विजिशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, critically revising the things intellectual content, and final approval on the version to be published. तो ये सब लोग ऑथर बन सकते हैं, ठीक है. और फिर उन्होंने ऐसा कहा है कि एक्नॉलेजमेंट का भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये देखिए. Contributor who do not qualify as authors should also be listed and their particular contribution described. This information should appear as an acknowledgement. Acknowledgement भी आप दे सकते हो उसके ऊपर में भी, अगर वो satisfy होते हैं तो. ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है. और एक और पूछना था कि अगर हम लोग हमारा थीसिस डिफेंस ही होना है या एक्चुअली अप्रूव ही होना है, जब डिफेंस होता है उसी वक्त अप्रूव्ड होता है ना, हम्म. तो उसके पहले अगर हम लोग हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है लैब के साथ में करके हम ऑलरेडी पब्लिश कर देते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्या? हमारा डाटा हमने तो किया है, हमने तो बताया कि ये फाइंडिंग्स है हमारा, ठीक है, हाँ, बट जब तक हमारा ये डिफेंस होता नहीं और हमने जो पुट अप किया वो सब एग्री नहीं करते उस चीज के, कोई कोई उसमें अपोज भी करेंगे ना जो देखिए डिफेंस मैडम, देखिए
ये ऐसे कुछ प्रश्न है ना जिसकी वजह से अभी यूजीसी इज रिवाइजिंग द थिंग्स। जैसे अभी यूजीसी क्या कहती है कि पहले कैसे था कि आपको थीसिस के ऊपर 2 पेपर मैंडेटरी थे, 2 पेपर आपको पब्लिश्ड पेपर थीसिस के साथ जोड़ने थे, बराबर है कि नहीं? अभी आज भी वही है नागपुर यूनिवर्सिटी में, हाँ मैडम, हाँ लेकिन अभी यूजीसी ने न्यू गाइडलाइंस दिए है, उसमें उन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है पेपर्स पब्लिश करना, हाँ, लेकिन क्योंकि आपको मैंडेटरी बताया तो आपको तो पब्लिश करना ही पड़ेगा ना। आज हाँ की मैडम, तारीख हाँ में जब हाँ डायरेक्शन सेज कि 2 पब्लिकेशंस होने चाहिए, एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी वो पीएचडी नए रेगुलेशन में मंजूर होगी, तो हम्म आपको करना ही पड़ेगा ना वो। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। पर इसी केस में जो मैंने बताया आपके सामने जो रखा, हम्म, हम तो बता रहे कि हम तो अपने एक यूरेका मोड में आके हमने सब बता दिया, लेकिन हम्म, जो काम लोगों के प्लेटफॉर्म में रखा और वो अप्रूव करने वाले जो भी पैनल में जो कुछ भी लोग रहेंगे, जो कुछ क्वेश्चनर करने वाले लोग रहेंगे, किसी का हम्म, उस पे ऑब्जेक्शन भी रह सकते हैं ना कि उसको हाँ, मॉडिफाई करो या नहीं करो, ये एक्सेप्टेड हम्म। नहीं है, आप इसको इस तरह से ये कर सकते हो, है ना। देखिए, अगर उन्होंने डिसअप्रूव किया तो आपका पेपर रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है फिर उस केस में ठीक है। नहीं, मेरा कहना था कि नहीं जब नहीं तक है अप्रूव ये करो तब चीजें। तक देखिए, मैं हम लोग आपको आपको ना अभी मैं नेक्स्ट सेशन जो कर रही हूँ ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो उसमें भी मैं ये मुद्दा लूंगी आपको समझाने के लिए कि कैसी गलतियां होती है ये सब चीजों की वजह से। ओके मैम। हेलो। हाँ हाँ। येस मॅडम. मॅडम ब्रेक घ्यायचा 5 मिनिटाचा? हो येस. घेऊया। पार्टिसिपेंट्स 5 मिनट का ब्रेक लेते फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करते.